Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you? This topic is related to that is results, and this topic seems to be difficult for some students, and this topic is involved in the O level syllabus, that is Maths 4024 and EdMaths as well as AS level. Okay, surds simply means that there is a square root form. This is known as a surds. Suppose that is square root of 8. This is known as the surds. Okay, so this topic consists of 3 to 4 steps which we have to going to discuss here. Okay, so the first, that is a simplify. That's when you are going to simplify the surds. This is especially like this one is square root of 9, so you can simplify this. This is 3. Okay, now this is cube root of 125. So cube root of 125 means this is cube of 5, and then you are taking the cube root of 125, that will be 5 only. Okay, it means that some are values are simple, that you can directly simplify that one. लेकिन कुछ इसमें वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 120 है आपके पास लाइक. सो इसको आप किस तरह कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, दिस वन नॉट अ कंप्लीट perfect cube. Okay, so we will do it like this one. So this is 120. So 120 can be factorized like this one if you are going to use the prime factor. 2 60s are 2 30s, next that will be 2 15s are, and 3 5s are, and 5 1s are. So you can take that. This is 2 2s are 4, and 4 times 2 3 are 6, 6 5s are 30. So you can use 4 times 30. So one of the value is the complete square, and other is that is a irrational number and complete square. So this will be square root of 4, that will be 2, एंड दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 30. ठीक है, जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर पे भी आप इसको डायरेक्ट भी आंसर निकालेंगे तो वो भी आपको इस फॉर्म में ये आंसर दे देता है. ठीक हो गया, ये सिंपल आपने सिंप्लीफाई करना है इसके जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि एडिशन की बात हम जब करते हैं कि ऐड हम कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, प्लीज़ देखिएगा. जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12. तो ये तो देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को तो आप मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते. सो बट यू कैन सिंप्लीफाई दैट इज स्क्वायर 12, दैट यू कैन राइट एज 4 times 3. ओके, so take square root of 4 as well as square root of 3. So that will be square root of 3 plus of square root of 4, that will be 2, and the square root of 3 will remain the same. Okay, now you are going to add this one. तो ऐड किस तरह करेंगे, जिस तरह सिंपली आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऐड करते हैं. यूँ समझ लें ये आपके पास 1x लिखा हुआ है और ये प्लस 2x लिखा हुआ है, तो दैट विल बी 3x, यानी कि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. क्लियर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एक्सप्रेशन इज़ 1 एस कोफिशेंट 1 + 2, दैट विल बी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक हो गया जी. अब आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ हमने एक लिखा हुआ है, ये भी वहीं हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं. तो दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7. इट कांट बी सिंपली फर्दर सिंप्लीफाई. लेकिन देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट विल गिव यू डायरेक्टली 7. और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 63 आपके पास आ रहा है. 63 जो है वो एग्जैक्टली दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, but you can write that as 9 times 7. So you will can take the square root of 9 as well as the square root of 7. ठीक है, so that will be 2 square root of 7 minus 7 plus the square root of 9, that will give you 3, and that will be the square root of 7. And now you have to simplify further, and you will simplify the like terms here, that is square root of 7 as well as this one is the square root of 7. So you can write as 2 plus 3 5 square root of 7, 5 square root of 7 minus 7. Okay, so this will be your simplification. Clear, सिंपल आपने क्या करना है, उसमें जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है वो करेंगे आप लोग. और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ज़्यादा डेफिनेटली दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके पास वो एक सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी. नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेशन की बात हम करते हैं या डिवीजन की बात हम करते हैं. तो इसमें जब हम सर्च की बात करेंगे तो उसका भी कॉन्सेप्ट वहीं आ रहा है जैसे हम पहले कर चुके हैं. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ज़रा देख लीजिएगा, नंबर्स को नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द स्क्वायर रूट विल बी मल्टीप्लाई विद द स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो 3 5 आर 15, और देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर जब हो जाएगा सो दैट विल बी 7, ठीक। और फिर जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 आर 15 माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 7। नेक्स्ट 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स विल बी मल्टीप्लाई बाय द नंबर, दैट विल बी प्लस 4 5 आर 20 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके जी, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल 15 7 आर आपके पास 105, और इसको देखिएगा ये फिर लाइक टर्म आपके पास आ गया, इट इज़ माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो जैसे अभी मैंने कहा, जैसे हम अलजबरा में यूज़ करते हैं सॉरी, दैट इज़ माइनस 15x प्लस 20x, आप उसको एज ए कंसिडर कर सकते हैं, तो दैट विल बी प्लस 5 यानी कि 20 माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है जी। दिस विल बी योर आंसर। ओके, जितना यानी सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब आ जाए नेक्स्ट, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये भी मतलब सिंपल है, लेकिन इसको अगर हम वैसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें गौर करें, दिस वन इज द फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, so the formula is using here first plus minus second into first plus second, then you can use the formula that will be the square of first minus square of second, ठीक है। ये बहुत सारी जगहों पे आपके पास ये यूज़ होगा, और इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जी? तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट मीन्स 5 स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर ऑफ 3, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का भी स्क्वायर लेंगे आप, बेसिकली हमारा जो फार्मूला होता है कि इंडाइसिस के हवाले से ए बी होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, द सेम कॉन्सेप्ट इज यूजिंग हेयर, सो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 दैट विल बी 25 एज वेल एज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, यानी कि अगर हम 8 का स्क्वायर रूट है और उसका जब स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट विद द स्क्वायर, सो दैट विल गिव यू द 8, ओके। सो 3 स्क्वायर दैट विल बी 9। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ से, दैट विल बी 200 एंड माइनस 9, ठीक है। 25 4 100 होता है बेटा, 25 8 200, जब 200 से 9 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 191, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप इसको 200 में से 10 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 190, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कुछ सिंप्लीफिकेशन क्या हो रहे हैं, इसके साथ हम रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फर्दर। Okay, the important concept of this SALS is the question is rationalize the denominator. In fact, the square root of 3 is a rational number. इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास जो डिनोमिनेटर में है, दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ओके। देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिनोमिनेटर इनटू अ रेशनल नंबर। ऊपर स्क्वायर रूट हो सकता है लेकिन नीचे अब इसको आपने रेशनलाइज करना है। अब देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो जिसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ रेशनल नंबर इज़ लाइक दिस वन, कि जैसे ये 2 प्लस अंडर रूट 3 दिया हुआ है तो हमने 2 माइनस अंडर रूट 3 से, यानी कि इसका सिर्फ सेम वैल्यू है लेकिन जो अपोजिट साइन होगा, साइन इसके साथ चेंज करेंगे जो इरेशनल नंबर के साथ लिखा होगा, ठीक है। तो 2 माइनस अंडर रूट 3, दिस वन इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। ये दूसरे कॉन्जुगेट नंबर्स भी कहलाते हैं, ठीक है जी। और इससे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपने अब फर्दर किस तरह सिंप्लीफाई करना है वो मेथड वैसे आपके पास है कि दिस नंबर न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर। सो ये नंबर है बेटा 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 7 2 ज़ार 14 और माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, okay। The formula is going to be used here, first plus second into first minus second, so that will be square of first minus square of second, so that will be 14 minus 7 square root of 3 whole divided by square of 2, that will give you 4 minus the square of the square root of 3 that and square that will be cancelled out with each other, okay guys।
so that will be 14 minus 7 square root of 3, so that will be 1। तो ज़ाहिर हम इसको 1 नहीं लिखते, तो इसका मतलब ये है, आप कह सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो गया, ये रैशनल नंबर आ गया है, तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये बहुत आसान से सवाल है, इसमें जो कि सिंपल आपने उसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, जिसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। Okay, this one is a question, and we have to simplify the cells, and 3 upon square root of 2 plus 6 whole square plus 5 upon square root of 2 minus 6 whole square। ठीक है जी, आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, तो और दरम्यान में प्लस है, तो जब आपके पास दरम्यान में प्लस या माइनस होता है फ्रैक्शंस के, देन यू विल टेक द LCM, you will use the concept of same denominator। Okay, so you can multiply, this is cross multiplication, like 3 will be multiplied with this expression and 5 will multiply with this expression। okay, so इसको हम किस तरह फर्दर सॉल्व करते हैं प्लीज़। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हमने इसको 3 इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 6 होल स्क्वायर एंड प्लस 5 इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6 होल स्क्वायर। ओके, और इसके बाद हमने इसका जो एलसीएम ले ली है, क्योंकि ये डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6 होल स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाई विद द स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको ऊपर कैसे सिंप्लीफाई किया है, दिस इज़ 3 तो हमने वैसे रहने दिए, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। जब आप 2 फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, सो दैट विल गिव यू 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, और नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट वी यूज हेयर फॉर द सेकंड एक्सप्रेशन, दैट 5 इंटू आपके पास है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। जब 2 होगा तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 12, और उसके बाद हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब देखिए नीचे जो आपके पास है, इसके भी हमने बिल्कुल वैसे ही स्क्वायर ओपन कर दी है, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड, और क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, वो 12 हो गया आपके पास। नेक्स्ट बिल्कुल हमें इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको एक्सपेंड की है। अब आगे देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके पास 36 प्लस विद इन ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं 36 प्लस 2 दैट इज़ 38, और माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर 5 इंटू, अगर इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ 38 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। ठीक है जी, नीचे देखिएगा आपके पास ये भी ऐसे आपके पास आ रहा है 38 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 38 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो अगर हमने 3 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 144 आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, 144 का हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, और उसके बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको देखिएगा, ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे अप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया कि जब आप इसको 38 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह करेंगे, देखें 38 आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, 38 टाइम्स 5 हो जाएगा बेटा आपके पास, दैट विल गिव यू 190। ठीक है जी, तो इस तरह आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है, प्लस करने के बाद नंबर से प्लस करेंगे, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है उसको हमने इसके तरह सिंप्लीफाई कर दी है, सो दैट इज़ प्लस 24, क्योंकि जब माइनस इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं। नीचे जो आपके पास आ रहा है वो 38 का जब हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो स्क्वायर ऑफ 38, ठीक है जी, तो वो ज़रा अपने इसको कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है, 38 दैट इज़ द स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी 1444। ठीक है जी, और सिमिलरली जब हम इसके डिनोमिनेटर फॉर्म में 12 का स्क्वायर लेंगे, 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 स्क्वायर का हो जाएगा 144, और जब 6 का भी अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 6, तो इट मीन दैट 144 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 144 टाइम्स 6, दैट विल गिव यू 864। ओके, तो उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे सेपरेट कर दिया हमने। अच्छा, अब देखें यहाँ तक हम इसको ले आए हैं,
अब यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई इस तरह भी कर सकते हैं हम कि देखें, इसमें अगर आपके पास 304 है, अगर मैं यहाँ पे यूँ कर लेता हूँ कि कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल, जहाँ पे इसको दोनों अगर कॉमन लेते हैं तो आपके पास जो है वो 4 हमारे पास कॉमन आता है, ठीक है जी। बल्कि इसका जो है 8 कॉमन आ रहा है। 8 को जब डिवाइड करेंगे दैट इज़ 38 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है जी 580, और इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं 4 से तो दैट विल बी 144। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आपके पास आ रहा है सिंप्लीफाई करते हुए दैट इज़ 2 इंटू 38 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 145। तो ये रेशनलाइज भी हो गया है, नीचे आपके पास जो है इरेशनल नंबर ख़त्म हो गया है। तो ठीक है जी, तो दिस वन इज़ द सिंप्लीफिकेशन। और जिसमें मैंने पहले बताया कि मेनली हमारे पास वो सारा एक सिंप्लीफाई फॉर्म है, उसको आपने सारा सिंप्लीफाई यहाँ पे कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो है आपको वहाँ पे भी कोशिश हेल्प करूँगा आपकी, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।